what exactly is energy, na? So we'll एक्चुअली क्या हुआ, कल हम चाय पी रहे थे। एक्चुअली इतने दिन से मैंने धूप देखा ही नहीं ना, कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए धूप ही नहीं देखा। कल थोड़ा सा देखा, चलो भैया, तो अभी जस्ट घूमे और देखा कि चाय कहाँ ओपन में है। सवेरा में चाय ओपन में देता है। थोड़ी धूप थी और अपने को धूप, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे को लग रहा है, और लोग नहीं है ना तो बहुत बहुत पावरफुल है, मतलब सब्जेक्ट कि आवर होल बॉडी इज रन बाय समथिंग। हाउ द बॉडी रन्स, brain runs the body, it seems, but then for anything to move, that should be locomotive, है कि नहीं? For anything to move, there should be locomotive, there should be some battery. Where is the battery? Where is this thing? It's very difficult, and nobody even thought. Today's session, even though it's very important for the scientists of the whole world, brain runs this, that, how does the body run? There should be some more electromotive force, EMF or locomotive or something. Then where do we get it? It is from the sunlight. Okay. Now, how the sunlight gives you? There must be some battery inside, and we don't know where the battery is. But there is a battery. When we look at the sun or we sit in the sun, at least as far as I am concerned, whenever I sit in the sun for 6 hours, 8 hours, 7 hours per day, that energy lasts for maybe 1 or 2 months. That means what? Your mobile battery is fully charged and it does not need recharge also. Nobody knows where the battery is, but this is 100% sure that there is a solar battery charged by the sun. If there is no sunlight, we know we are becoming dull. We may not even feel, but it's 100%. Any country where the sun is bright, like Mediterranean, equator जहाँ है ना, वहाँ की जो भी country हैं, all are more powerful, all are working better than the cold people, because the battery is not getting charged, and our battery is getting charged. Similarly, you take any sports, badminton, table tennis, highest battery charge earlier by the cricketers who were playing under the sunlight. Cricketers used to play in sunlight, their life and is much longer than football player or any other player. Because whole day they are under light. So the battery of that body is charged. We have come to 100% conclusion that battery is, there is a solar battery in our body. But where exactly location, nobody knows. And nobody can find out also, I think so. By this time somebody would have found out. But our zero therapy means homework for scientists and doctors. Now we are not interested in proving. We just give homework, one subject to the doctors and scientists. You keep on breaking your head, keep on fighting with each other and decide something, and after some time, somebody else will say you are wrong. They keep on deciding, they will decide, we give them, then another set of scientists will say you are wrong, this way, that way, another scientist, let them
conclusion is, now that energy from the sunlight, our experience is Atma. Atma only gets energy from sunlight. Atma gets energy from thoughts. Normally when you are sitting under sunlight, your thoughts are not getting corrupted. You will watch. Whenever you are in the dark, your thoughts are wrong. Whenever you are in the daytime, directly sitting under sun, I don't think you will get a bad thought. That means that is the energy for the Atma. You don't get bad thoughts, means Atma is getting lighter or getting better energy, better energy, better energy. That means battery is somewhere here. That is certain now. The sun cannot enter through this. Of course it can charge. We have told you earlier, at 12 o'clock, the digestion works better. Why? Because sunlight is directly on your head. And that charges the whole battery, whole system. When whole system is charged, your liver also gets charged. The digestion improves. In winter, we are not able to digest easily, but we feel like eating masala. Because there is no sunlight, we need spices to heat up the body. In summer, we don't like all these spices because the body is charged. We don't need. See, such a wonderful idea, nobody could have imagined. But one film director has imagined, that is something, we can't. How they have imagined? There was some set of people, they went on boat or something like that. कुछ था, किसी को मालूम है स्टोरी? एलियन का कैसा स्टोरी क्या है जरा बोल दे तो पूरा स्टोरी बोलता है. No, you know that? You know, no? Yes, because that's very interesting. How they have found out here? I see. How they have found out? There is a movie called Koi Mil Gaya, where there is a set of people from alien. One of the person of the alien was staying in the ground, and the alien boat has been moved off. So he was staying there, and there was some people, or a group of peoples, where one was very elder, of the age of 25, but he is acting as a very minor. His mind was working like minor only, even though his age was 25. फिर आके एलियन जो है उसके अंदर में एलियन जो आके एक मैच होता था, मतलब सीनियर वर्सेस जूनियर करके एक मैच हुआ था, तो इट वाज ए चैलेंजिंग तब कि तुम लोग नहीं जीत पाओगे करके. बट उनके हाथ में एलियन ऐसे ये सेव किया था एलियन को, तो एलियन आके उनके साथ मूव हो रहा था, तो उसने अपना पावर इसको ट्रांसलेट किया था. तो बीच में शॉर्ट ऑफ द ग्राउंड में सनराइज चले गए, सन से बादलों में छिप गया था, तब इसकी बैटरी डाउन हो गई थी. तो उस फोर्स से वो जो जूनियर थे वो खेल नहीं पा रहे थे. जैसे ही सन रेस उसके ऊपर पड़ी तो ये बैटरी चार्ज हुआ, एंड इनफैक्ट द मैच वो जीत गए. इट वाज लाइक दैट स्टोरी. सी, उन्होंने आइडिया कैसे लगाया? अपना तो शुरू से 2004 से ही अपने को, उन्होंने भी कहाँ से कहाँ आइडिया लगा कि कितना बड़ा है कि बैटरी है, देवी देवता जो है उनकी बैटरी है. अब ह्यूमन बीइंग की बैटरी नहीं मालूम, ये तो श्योर हो गया कि देवी देवताओं के लिए जो अच्छी देवी देवता मीन्स क्या, अच्छी आत्मा के लिए. बंडल आत्मा वालों कुछ जरूरत नहीं. ये तो हो गया एलियन है, कोई अच्छी आत्मा रहेंगी या कोई भी रहेगा. लेकिन इससे और एक पॉइंट है इसमें, मतलब पुराने जमाने को मालूम था, कृष्णा ने सूरज छुपा दिया था. देख, तो हो सकता है उस पावर से छुपा दिया तो किसी को फायदा और किसी को नुकसान, क्योंकि जब सूरज नहीं है तो नुकसान होना ही है. बैटरी चार्ज नहीं हुआ तो कृष्णा को भी मालूम रहता है, और ये तो इनको भी मालूम है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं. खाली ये साइंटिस्ट को होमवर्क है, पक्का है 100% की भाई है.
और सेल दिखता नहीं है। सी बैटरी है तो उसका सोलर सेल दिखना तो चाहिए ना बॉडी में, सेल कभी नहीं दिखता ना, कहीं एक इंडिविजुअल नहीं है। मतलब क्या है, होल बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। वर्ड कितना अच्छा है, उसको भी सेल्स ही बोलते हैं। ट्रिलियन ऑफ सेल्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ, एंड द एंट्री ऑफ दो सेल्स इज easily here, through this goes round the body and it gets charged. कितना सुपर एकदम एनालिसिस है। सब सेल्स है, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। प्लग खाली करना है, यहां से प्लग करो और पैर, मेरे जहां तक ख्याल है चप्पल नहीं होना चाहिए, तभी तो कनेक्ट होगा वो। फेस न्यूट्रल दोनों कनेक्ट होगा ना, नहीं तो इंसुलेशन हो जाएगा ना। इसीलिए वो सब साधु लोग सब धूप में बैठते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं साधु लोग। और सन बाबा भी होते हैं मालूम ना, देयर सन बाबा वू डोंट ईट एनीथिंग। मैं मिला हूं साधु से, यहाँ भी कोर्स एक था ना, एक बाबा जी को बुलाया था और लेक्चर भी हुआ था आराधना भवन में। हाँ पहले होता ना, वो सनलाइट ही उसका खाना था, कुछ नहीं खाता था। एक दिन जिनका खास मतलब गेस्ट था, होस्ट अपने को जानता है, जबरदस्ती उसने क्या किया, अरे यार कभी कुछ नहीं खाता, पानी नहीं खाता, उसने केला दिया। केला देते ही उसकी बॉडी से पूरा पानी निकलने लग गया। ऐसा इसको आदमी टेंशन हो गया, मैंने क्यों खिलाया। ही वॉज गेस्ट ऑफ दैट पर्सन, ही इज माई फ्रेंड। इसने केला दिया और पानी निकलने लग गया उसको, मतलब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। सी वो एकदम अच्छा था, सूरज से उसका चार्ज हो रहा था। कितना सीखने को मिलता है, सोचने को मिलता है। और अब ये पॉइंट कैसा है कि कल हम चाय पी रहे थे, यस कम बैक टू सेवेरा होटल, वहाँ चाय पी रहे थे तो एनर्जी के लिए गए हम लोग। फिर भी बार बार मैं ऊपर ही देखता हूँ, बादल कब आकाश सूरज के आगे आता है, पीछे आता है, सूरज कब निकलता है। जैसे ही बादल आता ना, ऑटोमेटिक मेरा एनर्जी डाउन है। बादल आया ऑटोमेटिक डाउन, फिर देखता आया। फिर नेक्स्ट क्या किया हमने, बादल को क्या देखना, सामने जो सवेरा का बिल्डिंग है ना, वहां उसको सूरज को देखने लगा, उसकी जो रोशनी है, इवन दैट बिकेम एनर्जी फॉर अस। वी डोंट हैव टू सी द सन। जैसे देखते कि दीवार पर आई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के अपना एनर्जी आ जाती थी। तो अब क्या हो गया, मान लो सनलाइट में रहना भी जरूरी नहीं है, सूरज की रोशनी देखना जरूरी है बैटरी चार्ज करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस है, तुमको क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, क्यों प्रॉब्लम उसके लिए आत्मा अलग टाइप की चाहिए। हर आदमी को ऐसा नहीं होता होगा, मेरे को नहीं लग रहा हर आदमी को ऐसा होता होगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि होता तो किसी को मालूम पड़ जाता ना। अब तक मेरे को कैसे मालूम पड़ा। माइंड 7:30 से 5 o'clock तक बांधक में धूप में ही बैठता था, 31 डिग्री टेम्परेचर। एक ही दिन 29 आया, जब यहाँ थोड़ी बारिश थी ना तो वो बादल उड़कर आ गया, 29 आया। मतलब सन में एनर्जी है, ये कंफर्म्ड है। और उसको देखने से भी एनर्जी आती है, वो भी अच्छा है। हर आदमी एकदम एनर्जी भी नहीं ले सकता। हर आदमी तुम्हारे जैसे सन में बैठेगा तो एक आदमी भी मेरे से बात नहीं कर सका बंधक में, एक्सेप्ट वन रसोईया। क्यों, उसको इज एक्सपोज टू दैट भट्टी ना, वही बैठा 20 मिनट तक यार, वही एक बैठा। मैं बोला कोई नहीं बैठा मेरे पास में, ये कैसे बैठा, 10-15 मिनट बैठा यार, 10-15 मिनट बैठ गया। एंड दैट इज डिफिकल्ट। मेरे सामने बात करना तो तुम छाया में, मैं धूप इधर, ऐसा, नहीं तो नहीं। तो ये जो देखने से भी एक लेवल से सनलाइट बैठने का जरूरी नहीं है कि तुम लोग सनलाइट में पसीना आ जाएगा। जैसे उसको पसीना केले से आ गया ना, तुमको सनलाइट में पसीना आ जाएगा। तो वो तुमने प्रैक्टिस करना है।
ऐसे ओपन में बैठो, सन की एनर्जी लो, सन की रोशनी लो, सन की रोशनी देखते रहो, तो लो वोल्टेज से तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी। सेल्स जो है ना, ये सब सेल्स फुल्ली चार्ज करने के लिए वो पावर हो चाहिए, और छोटा मोटा चार्ज करने तुम्हारी आत्मा के लिए जैसे है ना चार्ज, वो रोशनी भी बस है। तभी क्रिकेटर क्या करते हैं मालूम, कभी भी बैट्समैन देखना हो ना, इनकमिंग बैट्समैन, इनकमिंग बैट्समैन कहां बैठता है तो वो क्रिकेटर मालूम है ना? यस, ही इज गेटिंग चार्ज इन द सन। पेविलियन में नहीं बैठता है, सब प्लेयर पेविलियन में बैठता है, ये आकर धूप में बैठ जाता है। और कपिल देव को दिखाता है, कभी भी पहले सन दे करके वो बैटिंग करेगा। दे डिराइव एनर्जी। तो सन मतलब क्रिकेटर आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ बैटरी चार्ज, उनका ये मतलब एक तरह से होता है। इतना अच्छा साइंस सोचा ही नहीं था। बात करते करते ऐसे ही चाय पीते पीते सूरज की रोशनी से इतना बड़ा रिसर्च नहीं बोल सकते हो, इट्स लाइक इन्वेंशन, नॉट रिसर्च। इसके अंदर डाउट और कुछ बोला था तूने, ये तो हो गया। तूने क्या बोला था? कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बोला था, कॉन्फिडेंस, ये भी बोला कॉन्फिडेंस। जय प्रगति। अपना कॉन्फिडेंस लेवल हर टाइम एक जैसा नहीं होता अंकल। Yes, I could see the confidence by the slow voice. कोई कोई आता माइक पकड़ के हिला देता माइक, कोई उसमें कॉन्फिडेंस दिख जाता है मेरे को। और तू इतना धीरे बोला ना, मे बी मैनर्स, मे बी कॉन्फिडेंस, दैट ऑल्सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई मैनर वाला भी धीरे बात करेगा, बट यस। लास्ट शनिवार को मैं इधर ही सोया था, मेरे बहन के यहाँ। 11, 11:30 बज गए। उनकी ग्रैंड डॉटर आर्किटेक्ट कर रही है, फर्स्ट ईयर। यू नो, वो बोली कि ऐसे सुनने से एक तो नए नए थॉट्स ट्रिगर होते हैं, कोई आइडिया पॉपअप होता है। नेक्स्ट डे द कॉन्फिडेंस लेवल इज सुपर, उसने बोला। सी, तो ये क्या हुआ? कॉन्फिडेंस कम्स बाय नॉलेज। हाउ मच यू नो, दैट इज द स्टॉक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का स्टॉक क्या है? द मोर यू नो अबाउट सब्जेक्ट, मोर कॉन्फिडेंस यू गेट। मोर यू नो अबाउट योर बॉडी, you are able to stand the disease. But medical science के अगर more you know, it's not going to help you. अगर तुम बोला typhoid, bipolar, then name, that is not going to help you. The truth, the nearest to the truth, ज़रूरत truth है। तो जितना knowledge you get confidence, and fear अगर है तो कॉन्फिडेंस इज लॉस्ट। सो उसके लिए फियर को भी दूर करना पड़ता। और इसने बहुत पहले मेरे को बताया, बिफोर कमिंग टू जीरो थेरेपी, व्हाट वाज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाट, लेट्स आराम से हिंदी में प्यार से और मारवाड़ी में बोले तो और भी अच्छी बात है। जय प्रगति आदि। वही कॉन्फिडेंस लेवल जीरो थेरेपी में आने के बाद में तो बहुत बढ़ जाता है। अंकल जी जैसे अभी बताया, नॉलेज के हिसाब से तो एवरी सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत तो पहले के लेवल से अभी के लेवल में तो बहुत फ़र्क हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू स्टैंड एंड टॉक इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। ये एक्चुअली उसका मुझे नहीं मालूम था ऐसा होता है। इसने एक दिन बहुत पहले बोला और परसों उसने बोला, तो फिर मैंने सोचा कि ये मोर यू नो, मोर यू हैंडल पीपल, मोर सक्सेस गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, मोर सक्सेस मोर कॉन्फिडेंस।
लेकिन उसके लिए क्या नहीं करना इंपॉर्टेंट है, वापस वही जीरोथेरेपी आता है कि सक्सेस होने के लिए क्या नहीं करना जरूरी। हर जगह ले दे करके वही आता है, चाहे बिजनेस है कुछ भी, क्या नहीं करना, बेव को उधार नहीं देना, फेल नहीं होना, हाँ तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिजनेस में वही है, बिजनेस एंड जीरोथेरेपी एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल है, क्या नहीं करना क्या नहीं करना, कॉन्फिडेंस लेवल। और वैसी है जैसे ये बोलता है कि मैं घर से स्टार्ट होता हूँ, बीमारी याद आती है नेल्लूर से, सेंट्रल पर आया, उसको बीमारी लगता है कि कुछ नहीं है। सो फॉर अ कॉन्फिडेंस सेम पर्सन, वही सेंट्रल स्टेशन को कॉन्फिडेंस आता है, वही क्या कारण है, व्हाट एग्जैक्टली द रीजन। सी सेम पर्सन सेम नॉलेज, ही कैन नॉट गेट मोर नॉलेज विद इन 5 minutes फ्रॉम नेल्लूर टू मद्रास। उसको तू तेरे को लगता है ना, क्यों और बोलो कोई क्यों होता है। एक्चुअली जीरोथेरेपिक एनर्जी वहां से भी आ सकता है ना, यहाँ उतरने से क्यों आता है। सी जीरोथेरेपी कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन यूनिवर्स, व्हाई इट्स हियर। नहीं तो पॉजिटिव एनर्जी तो नेल्लूर में भी आ सकता है ना, बिकॉज ही इज अ वांट ऑफ जीरोथेरेपी। सी the magnetism and area of gerotherapy is based in Chennai now. It is coming under that. So we have to improve the aura. अपना ऐसा करना कि इसका aura नेल्लूर तक भी जावे, तब उसके लिए we have to meet, share cup of tea, togetherness, जितना togetherness रहेगा ना उतना उसका aura बढ़ेगा। और बहुत बार हुआ मैंने, अगर ये मैं बांधक में और तुम बांधक में आए तो वो तभी ऐसे लगे आगे भाई अपने ऑरा में आगे। तो इट्स द ऑरा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरा बढ़ाने के लिए एक दूसरे से मैंने रिले रेस किया, जगदीश को दिया, जगदीश ने ऑरा बढ़ाया, वहां तक गया, वहां तक ऐसे हो सकता है। विपिंजन एलोन, तो विपिंजन एलोन करता है इसलिए सेंट्रल स्टेशन, और 10 जने रहे आगे आगे, रिले रेस पास किया आगे आगे, तो वो आगे जाएगा। इसके लिए अपने सब हेल्प करना, अपने हेल्प करना। जो एंटी जीरोथेरेपी है, नो जीरोथेरेपी, उसको पहले दबाना, वहां पर ब्रेक लग जाता है। मैं दिया वो दिया, और वहां से थर्ड में रिले में वो रख दिया अपने हाथ में। तो यू हैव टू सेलेक्ट द राइट मैन, बट यू कैंट सेलेक्ट द राइट वाइफ। अब क्या करें, वो सारा लफड़ा है ना, वही गड़बड़ तो वही होता है। ससुरा सासू सब रुकाने वाला कौन है, एवरी टाइम रिले को रुकाने वाला कौन है, कोई सासू, कोई ससुरा, नहीं तो कोई हस्बैंड, नहीं तो बीवी। ये चारों में ही कोई रुकाने वाला है कहीं ना कहीं, तो इसके लिए फैला नहीं। और सबसे बड़ा क्या है, मेरे को टेंशन होता है कि फैलाना क्यों, तो मैं भी छोड़ दिया, फैलाना ही क्यों। सच है तो उसको फैलाने नहीं। अब तो मैं सोच लिया सच को क्या फैलाना, जैसे नीलेश बाबू बोलता है सच को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, फैलाना क्या है, जाने दो। तो इसलिए अब फैल भी नहीं रहा ज़्यादा। अब सच फॉलो करते हैं अपने, फैलाने के लिए एक अलग मार्केटिंग है। मार्केटिंग करना नहीं है क्यों, सच डज नॉट नीड मार्केटिंग, ट्रूथ है दैट डजंट नीड मार्केटिंग। सब जगह फैल रहा है। अभी कोई बोल रहा था, कौन सा चैनल देखा कल परसों, साधना कोई बोल रहा था, साधना कोई चैनल, हाँ एग्जैक्टली उसमें लिखा है योर बॉडी इज योर डॉक्टर, यू आर द डॉक्टर, ये वो सेम टू सेम लिखा। तो फैल तो रही है, जीरोथेरेपी नाम नहीं है। पहले कहाँ चले गए सब लोग, अब सब लोग वही बोलते हैं ना, अपने जो बोलते हैं वही बोलते हैं। चाहे वो वाइट कपड़े वाले हो वो भी वही बोलते हैं, चाहे कोई जैन है तो वही बोलते हैं, अब सब वही बोलते हैं ना, पहले कहाँ चले गए थे। तो फैल रहा है, एंड सच का नाम नहीं होता, तो जीरोथेरेपी भी नाम नहीं है। क्यों, जीरोथेरेपी भी फैलाना नहीं है, सच फैलाना है, जीरोथेरेपी भी नहीं फैलाना। क्यों, नाम से फैलाए तो फिर वही हो गया ना जीरोथेरेपी। अगेन सच को न तो नाम चाहिए न कुछ चाहिए, सच इज ए फिलोसॉफी, इट डजंट नीड अ नेम एट ऑल। जीरोथेरेपी नेम भी जरूरत नहीं है उसको। इसलिए रियली सच में सब फैल रहा है, नाम नहीं फैल रहा है। क्योंकि नाम होगा
तो सच ही नहीं होगा, इसलिए बोल रहा सच को क्या नाम होना। तो सब प्रिंसिपल फैल रहा है, कितना सुपर आराम से फैल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से फैल रहा है। कोई ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन सब वही बोल रहा है कि नमो अरियंताणम, सब वही बोल रहा है कि अरियंतों को नमस्कार। चाहे क्रिश्चियन है तो उसके में भी अरियंता है, चाहे वो मुस्लिम है उसमें भी अरियंत तो सब जगह है। जिन्होंने लव लस्ट ग्रीड को जीत लिया वही अरियंत। तो स्टेप का जीरो थेरेपी इज दैट नवकार मंत्र लेवल है कि नाम जरूरत नहीं है और फैला, लेकिन प्रिंसिपल फैलाते रहो, सब जगह फैलाते रहो। नाम भी बोलो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ मयूर भगवान का भी नाम दिया गया, भगवान का भी नाम था, नाम तो सबका था। तो कोई फैलाने के लिए नाम जरूरी है, अपने को फिक्र नहीं है, लेकिन नाम तो जरूरी है फैलाने के लिए, नहीं तो क्या है, कौन सुनेगा। हर के लिए जिंदा है जब तक नाम जरूरी, मर गया उसके बाद जरूरत नहीं। नीलेश मेहता, आजा भैया, ट्रिगर कर दे थॉट्स, पॉप अप ट्रिगर। लेकिन आज का लेसन तूने लेट आया ना, चप्पल पहनो पहले, अच्छा, क्योंकि ठंड लग जाएगी। आज का तो रियली समथिंग वंडरफुल, और तू छूट गया। मतलब आज का सेशन वापस देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा सबको। हालांकि कभी नहीं आता मेरे को इतनी कम गैदरिंग में, कभी नहीं आता, बट आज अनबिलीवेबली कल बस सी अगेन शेयरिंग अ कप ऑफ टी गॉट ऑल दिस थिंग्स। से आता ही नहीं ना, शेयरिंग ऑफ कप, खाली सवेरा में चाय पी हमने, उससे इतना बड़ा हो गया। इसलिए बोलते हैं कि अपने सब जरूरत रहे वाले अगर मिलकर हैं ऐसे चाय की जगह मिले तो कितना फैलेगा रे। एक जरूरत रहे सेंटर हो, चाय पियो, डिस्कस करो, और हेल्थ का बारे में बात ही नहीं करो तो नॉलेज फैलेगा, होगा कितना। हेल्थ ही नहीं है, कोई बोले ये तो हेल्थ नहीं है भैया, हम तो डॉक्टर पास में ही जाएंगे मरेंगे तो, उसके पहले मरते नहीं है तो उसका क्या करेंगे, ऐसे फैलाओ। बट हाई टाइम वी हैव टू मीट, या कहीं भी बना लो ना अपने एक डे वेयर वी ऑल मीट फॉर टी, एक एवरी वीक। जैसे ये है ना, और एक दिन जगह को जहाँ चाय, बस मोदी जी कितने होशियार है, चाय चाय पर चर्चा, हाँ अपने सेमिनार करते हैं इसके लिए। चाय अपने शुरू से लिखा, शेयरिंग अ कप ऑफ टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ऑफरिंग अ कप ऑफ टी। इसका भी हो गया डाउट, उसका भी डाउट हो गया, तेने एक दो डाउट रख लिया, भंडारी रख लिया, इतने में तू जरा कोई भी डाउट हो कुछ भी जय प्रकृति। अंकल, पुराने जमाने में वो मंदिर ऐसे डाउन में हुआ करते थे अंकल, ऐसे अंदर नहीं जा सकते थे, उसका क्या? अभी कौन देगा ना मंदिर, तुम्हारे पे ऐसे होता है मंदिर? यस, सब मंदिर पुराने में छोटा ही होता था दरवाजा, लेकिन उसमें भी दो पॉइंट है। मंदिर छोटे होते थे, बड़े होते थे। जैसे मैंने जो देखा है, मॉडर्न ने बनाया बड़ा मंदिर, साइड में सब पुराने मंदिर ना, सब छोटे छोटे ऐसे, बस ऐसे ही होते थे छोटे छोटे, और अंदर दिया लगता था। अब उसमें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, उस टाइम में आदमी अलाउड नहीं था, पुजारी ज़्यादा दिया लगाता था। बाहर से देखो, दिए से देखो, भगवान को स्नान मत करो, भगवान को टच मत करो, भगवान को करप्ट मत करो, तुम्हारी भावना से। वैसा था उस समय में। और बड़े मंदिर में अगर ऐसा होता है तो उसका कोई रीज़न, बड़े मंदिर में भी ऐसा है क्या? अगर बड़े मंदिर में ऐसा है तो फिर इट्स ओनली चोर से दूर रहने के लिए रहेगा, क्योंकि गहने वहने सब रहते हैं। पुराने ज़माने में बहुत ऑफरिंग करते थे, तो चोर को दूर रखने के लिए बड़े मंदिर तो ऐसा। बट मैंने जहाँ तक देखा, 24 तीर्थंकर की मूर्ति थी चारों तरफ, बीच में एक बनाया अपने लोगों ने, आजकल प्रतिष्ठा आजकल करा दिया, वो ओरिजिनल मतलब इतनी बड़ी नहीं है। साइड में अंदर सिर्फ एक आदमी दिया रखकर आ सकता, उतनी जगह थी। तो यू जस्ट प्रे 24 बार, जितनी बार भी प्रे करो। और 24 में भी कुछ एक न्यूमरोलॉजी रहेगा, 24 में कुछ न्यूमरोलॉजी रहेगा, बिकॉज 6 इधर वीकडेज 7 है, सब 7 है, 6 तीर्थंकर 24, उसके आगे 24, उसके आगे 24, तो 6 में कुछ ना कुछ तो रहेगा।
मीनिंग नहीं, न्यूमरोलॉजी ऐसे नहीं हो सकता. वी कीप ऑन टॉकिंग, न्यू सब्जेक्ट कम्स. बात करते रहो, कुछ न होता है. ये सब बांधक की बैटरी चार्ज हुई ना इतने दिन, अभी डिस्चार्ज धीरे धीरे हो रही है. अभी आज साइक्लोन कहाँ जा रहा है, कहीं पढ़ा क्या न्यूज? नहीं क्या? वो तो मेरे को तमिल न्यूज में तो बोला कुछ उड़ीसा बोला, मालूम नहीं मेरे को. हाँ, कर्नाटका में साइक्लोन, कर्नाटका नहीं जाएगा. कोस्टल में ही जाएगा ना रे. तो कर्नाटका कोस्ट है क्या कहीं? कर्नाटका कोस्ट इधर कौन सा है? कर्नाटक इधर है क्या भाई? आंध्रा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, यही तो है. होगा कहीं नीचे जाता हूँ. कर्नाटका वर्ड बोला क्या उसने? भुवनेश्वर बोला क्या? नहीं, भुवनेश्वर का कोई दूसरा नाम रहेगा. कटक बोला क्या? हाँ, से भुवनेश्वर, कटक, वो सब उड़ीसा में है. क्योंकि साइक्लोन तो कभी भी कोस्टल के वहां लैंड में जाएगा, फिर अंदर जाएगा बाद में, हिटिंग द कोस्ट, देन इट गोज टू द लैंड एंड डिस्ट्रॉयज. वो भी हो सकता है, राइट? तो तेरा तो ये पॉइंट मंदिर का छोटा पॉइंट हो गया. तेरा पॉइंट बच्चा, यस, आजा आजा आजा, बैठ जा. टुडे वी हैव जी, whenever we talk on telephone or cell phone, तो एग्जैक्टली वही वॉइस इन स्पॉट ऑफ मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मतलब सुनाई देती है. तो टेक्निकली मतलब जब साइंटिस्ट ने इस पे जब वर्कआउट किया तो वो वेव्स वगैरह चेंज करके वॉइस चली जाती है. बट एग्जैक्टली जो मेरी वॉइस है वही आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सुनाई देती है. हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब व्हाट्स द बेसिक, नो लाइक हाउ इट हैज बीन डन, मतलब कि सेम वॉइस गोस एग्जैक्टली ना भाई. तो ये तो वही तो उन्होंने साइंस किया, और क्या गया. तो इसमें क्या, विदाउट ब्रेकिंग बोले तो रिकॉर्ड और स्पीड है उसमें. सेम टू जाएगा ना, बदलेगा कैसे यार? अभी रिकॉर्ड एग्जैक्टली तो वो भी नहीं है. अभी वीडियो से करते हैं, देख वापस बदल जाता है. पहले वीडियो करेंगे, उसके बाद डीवीडी करेंगे, वापस करता है तो बदल जाए. पुराना जो था ना मैग्नेटिक, वो HMV इज मास्टर्स वॉइस, उसमें ओरिजिनल होता था. अभी अपने को हो सकता है ओरिजिनल भूल गए, अपने को लगता है सेम वॉइस है. जैसे अभी आपकी वॉइस है तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपने मतलब फोन किया है. करेक्ट भाई. अब उसका तो टेक्नोलॉजी उसका नहीं, बट टेक्नोलॉजी है मस्ट बी. अब एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी क्या, मोटरोला को जाकर पूछ. मोटरोला लाया और सिमेंस लाया, 2 जने लाए हैं वर्ल्ड में. बट हाउ इट इज पॉसिबल? क्या इतना डिफिकल्ट केस है? इफ यू रिकॉर्ड प्रॉपरली देन यू कैन रिले सेम ना. पहले रिकॉर्डिंग बराबर नहीं होता था. अभी भी ये देखना, आफ्टर सम टाइम दे विल फाइंड आउट मिस्टेक. देखना कि एकदम ओरिजिनल नहीं है वॉइस. थोड़े दिन रिसर्च करेंगे, ये वॉइस ओरिजिनल नहीं थी, या इतना था, टूटा, इतना फूटा, ऐसे वैसे बोलेंगे थोड़े दिन बाद में. अपने एबल टू रिकॉग्नाइज, बट देन इट इज नॉट द सेम अनलेस मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होता है ना, मैग्नेटिक, वो ही सेम होता है. ये तो वापस ट्रांसमिशन रिसीव होता है ना, थोड़ा फर्क पड़ता ही है, बट इतना कम फर्क पड़ता है कि सेम दूसरा नहीं होता है. और कभी भी होता है ना, सेम वाइज भी एक्टिंग कर लेता है ना, सेम वाइज बॉस की एक्टिंग करके पैसा निकाल देता है, ऐसे भी होता ही है. बट दिस प्योर टेक्नोलॉजी, उसमें अपने समझ कर भी मतलब. लेकिन ये जो वेव फ्रिक्वेंसी है ना, उसमें थोड़ी वॉइस तो ब्रेक होंगे. मैग्नेटिक है उसमें ही बराबर होगा, एकदम ओरिजिनल आएगा. फिर भी इस सब्जेक्ट में अपना अथॉरिटी नहीं, इसलिए वी कांट टॉक. वी आर नॉट द अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट. पूछूंगा किसी को मैंने. अभी तूने मेरे को होमवर्क दे दिया भाई, अच्छा किया. कोई आएगा ना उसको पकड़ेंगे सर. गुड, ऐसे कीप ऑन डूइंग. अंकल, दिस कॉन्फिडेंस लेवल इन जीरो थेरेपी में लगते तो उसका तो कुछ इमीडिएट बूस्ट हो जाता है.
नाउ अहेड ऑफ दैट एवरीथिंग, कोई भी कुछ बोलता है तो माइंड टिकरिंग होता है कि इसका नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, क्वेश्चंस में और डाउट्स रेस होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अपन सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है कि महावीर स्वामी जी के टाइम में, मतलब उस काल में मदिरा और ये सब छोड़ा हुआ है, तो उस टाइम में भी था क्या अंकल मांस और मदिरा सभी? मतलब ये कब से आ रहा है मांस मदिरा, या खाली बुक्स में आ रहा है, या उस टाइम महावीर स्वामी के काल में भी था ये? एक्चुअली आदमी जब पैदा हुआ ना, मांस पहले पैदा हुआ, फल फ्रूट उसके बाद है मांस, खाना तो बनना बाद में हुआ. तो ये तो दोनों हॉट एंड कोल्ड शुरू से ही है, लेकिन ओरिजिनल है जो एकदम फल फूल से पैदा हुआ. उसके बाद में आदमी होशियार हुआ थोड़ा, तो औजार बनाने लगा तो स्पोर्ट्स के हिसाब से, टाइम पास के हिसाब से जानवरों को मारने लगा तो उसने वहाँ से मांस खाना शुरू किया. तो महावीर भगवान नहीं, पहले से ये नॉन वेज है, लेकिन उसके पहले से फल और फ्रूट्स. जब उसको मारना नहीं आता जानवर को तो क्या करता? हाँ, ये जो है ये सिविलाइज जब बनने लगा ना आदमी, राजा महाराजा सिविलाइज, तब ये सोमरस, ये अंगूर को सड़ाना, उसका बनाना, तब किसी ने डिवाइस किया, लाइक डॉक्टर ना फाइंडिंग ए न्यू आइटम, किसी ने डिवाइस किया. वो कैसे होगा? बाई मिस्टेक भी हो गया होगा, कहीं सड़ गया होगा और उससे डेवलप हो गया होगा. सड़ गया, किसी ने पी लिया होगा उसको, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, तो वहाँ से कुछ रिसर्च मतलब इन्वेंशन हो गया होगा. वापस ही बाई डिफॉल्ट ही हुआ रहेगा, ओरिजिनल उसको कैसे मालूम? गलती होने के बाद आइडिया है उसको. गुड. दिस रिगार्डिंग सनलाइट अंकल, एशिया में तो सन्स आते हैं अंकल, ओवरसीज में सन नहीं आते, तो उनके बॉडी में कुछ इफेक्ट होता है अंकल बिना सन के? कई सालों तक नहीं आता उनको, तो वो देखते भी नहीं है. और फार्मर जो एवरीडे वर्क करता है वो सन में करता है, तो हाउ, मतलब उसका एनर्जी ज़्यादा आने से उसको कोई डिसएडवांटेज अंकल? नहीं, जितना एनर्जी आता है ना उतना कॉमन सेंस बढ़ता है. तो फार्मर को कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा है, और जितने भी कोल कंट्री में हैं उनको अपने जितना दिमाग हो नहीं सकता, लेकिन वो बहुत एक में होशियार है. दिमाग यहाँ डेवलप होता है, वो कॉपी करने में होशियार. दिमाग उनका नहीं होता, बट कॉपी फास्ट है. क्यों? क्योंकि टाइम भी कम है, सोते ही रहते दिन में. इतना सा है तो कॉपी करना बेटर है, सीखेगा करेंगे जब तक उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी. एंड ये वेरी सर्टन है, क्लियर है. कुंभकर्ण 6 महीने सोता था कुंभकर्ण, तो वो क्या, वो कहीं ठंडे देश में रहेगा तो वहाँ सो गया होगा. ठंडे देश में वो सूरज नहीं दिखता, सो गया होगा. अभी भी यूएस में देखना सूरज कितना कभी कभी बहुत कम दिखता है, और कभी दिन भर में लंबा सूरज होता है, तो वहाँ पर बैकअप हो जाता है. लंबा सूरज होता है, एनर्जी आ जाती है. कितना सूरज, मेरे ख्याल से वहाँ पर 15-16 घंटे के ऊपर सूरज आता होगा, कहीं कहीं 8 बजे तक रात को सूरज रहता वहाँ. कब उगता नहीं मालूम मेरे को. नॉर्थ में भी रहता है ना. तो इक्वेटोरियल जो भी है वहाँ सूरज, वहाँ दिमाग जो भी डेवलप होता है, इक्वेटर के रहने वाले सब से ही ज़्यादा होगा. बाकी सिस्टम अच्छा है, कॉपी कर सकते हैं. ओन डेवलपमेंट तो यही होता है. इसीलिए अपने खेती को डेवलप करो, कॉमन सेंस डेवलप होगा. किसान को डेवलप करो, कॉमन सेंस डेवलप होगा. किसान को डेवलप करो, कंट्री ऊपर होगा. हर किसान को ओनर बनाओ, एक ही हर किसान को ओनर बनाओ. अपने मिलकर, एक किसान है, चल भैया तू मेरे को दे, उसको ऊपर लाओ. एक जना एक अडॉप्ट भी कर लो किसान को, तो भी एकदम ऊपर है. यहाँ बेस्ट वे टू अडॉप्ट किसान इटसेल्फ. चल भैया तो मैं देता हूँ खेती के लिए. वो कभी बेचारों को बीज खरीदने का पैसा नहीं होता, फिर मारवाड़ी के पास जाता है, वो उसका ब्याज के सहित उसको बीज और झाड़ का भी दाम ले लेता है. बीज खरीदने के लिए बेचारा कितना मुश्किल हो जाता है. खाली बीज, फिर वो फर्टिलाइज़र, वो जरूरी नहीं है, समझाना वाला कोई नहीं. सब रॉन्ग समझाते हैं. हाइब्रिड फर्टिलाइज़र सब रॉन्ग सीखे बेचारे.
कोई कॉमन सेंस अच्छा सिखाए नहीं, कोई साइंटिस्ट जाकर उनको भी बिगाड़ दिया बेचारों को, किसान लोगों को, कि एक खेत इतना जल्दी पैदा होगा, जल्दी कर, इतना पैदा होगा जल्दी कर, लेकिन उनको नहीं मालूम जितना जल्दी किया भूमि उतनी जल्दी मरती है, वो नहीं सिखाया गया। एक खेत में जितना जल्दी आता है ना, भूमि एकदम बेकार हो जाती है, उसके बाद में वेस्ट हो जाती है। ये है हाइब्रिड का, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM का ये नुकसान, कोई बोलता नहीं है। पूरा इंडिया का सब जमीन ही खराब हो जाएगी ना भाई। बाकी किसान क्या करता है, 6 खेत रखता है, 5 में उगाता है, एक काली रखता है, ऐसा हमेशा एक काली रखता रहता किसान। जब US UK जो भी है ना, वेस्टर्न कंट्री ये देखते हैं, दिमाग नहीं है उनका इतना ज़्यादा, लेकिन देखते रहते हैं कि इनको कैसे उल्लू बनाया, अपने को उल्लू कैसे बनाया, और अपना फेथ जल्दी कर लेते हैं। क्यों? अपने वालों पर फेथ नहीं करते हैं, बाहर वालों पर। बाहर जाकर तुम केला देख लो, इम्प्रूव हो गया, चलेगा। यहाँ केला कितना उगता है नहीं मालूम। बाहर जाने वालों पर अपने को ज़्यादा विश्वास है कि बाहर वाला क्या कर रहा है लैब में। हाँ, यहाँ खेत वाला बेचारा सब जानता है, लेकिन अपने को अपने आदमियों पर विश्वास नहीं है। इंडिया में कहीं बाहर जाने के लिए FDI ये वो कोई जरूरत नहीं है, मेरा आइडिया है, कोई जरूरत नहीं है। ईच पर्सन अडॉप्ट्स एक आदमी को, वो क्या काम। यहाँ जितना अबेंडेंस है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज, हार्ड वर्क, लेस ऑफ चीटिंग, वहाँ थोड़ी इतना है। सब बिजनेस, कॉमर्शियल। अभी आपने सब कर रहे, इतना लंबा लेक्चर कर रहा है, पूरा नॉन कॉमर्शियल। वहाँ थोड़ी कोई होगा। वेस्टर्न कंट्री में इतना होगा क्या, माई चार्जेस लाइक दिस पर आवर, देन यू अप्लाई, देन पुट द कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके बाद में सब होगा यहाँ पर। यहाँ तो इंडिया में तो सब बेचारा फ्री मिल रहा है, ज्ञान, नॉलेज कितना अच्छा है। अंकल, नेचर बैलेंस करने के लिए सफर दूसरे कोई लोग होता है, एक्शन कोई और करता है अंकल। गुड बहुत अच्छा पॉइंट है। सब जने अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जा रहे हैं, दुनिया पूरा बात कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, अरे किया किसने ग्लोबल वार्मिंग? वो नहीं जो काज नहीं, जो डॉक्टर के जमाने ना इलाज कर रहे बीमारी का। ऑल दिस पीपल, वर्ल्ड के लीडर आर ट्राइंग टू डू इलाज फॉर द डिसीज एंड नोबडी बॉदर्स अबाउट द कॉज ऑफ डिसीज। एक्चुअल कॉज ऑफ डिजीज ग्लोबल वार्मिंग का क्या है भैया? रॉकेट, मिसाइल्स, ये सब छोड़ रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट, उससे वार्मिंग होता है, कोई बात ही नहीं कर रहा। काज तो हुआ है और तुम बात कर रहे हो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग। नॉन वेज, वो भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, उससे भी एक तरह से हीट पैदा होती है। ये सब के बदले एयर कंडीशनिंग, ये वो उससे बात करने का कितना वर्ल्ड में ही देसी। इट्स रेडियो एक्टिव जितना फैला रहे ना, न्यूक्लियर टेस्ट किया रेडियो तो वो उससे कितना नुकसान होता है, वही तो है ज़्यादा। फिर क्या करता है? फिर नेचर इस तरह से 1 महीना तक बारिश लाता है। ये बारिश लाने का कारण ही है, नुकसान अपने करते हैं, टेस्ट वो करते हैं, नुकसान इंडिया को ही हो रहा है। इंडिया को नुकसान हो रहा है, इंडिया को कितना नुकसान हो रहा है इनडायरेक्टली। कभी जिंदगी में 1 महीना नियरली स्कूल बंद हुआ क्या यार? नियरली 1 महीना स्कूल बंद हो गया तो कितना इंडिया पीछे चला गया, कितना पीछे है, फॉर व्हाट? ऐसे ही टेस्ट करो, सब टेस्टिंग करे ना। यहाँ अमेरिका, इंडिया एंड जापान पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके पहले श्रीलंका, इंडिया ने टेस्ट किया। और अभी मिसाइल्स, ये जो 4, मेरा आइडिया है ये जो है बारिश अभी है, लास्ट वीक 3 मिसाइल छोड़े 4 दिन में, 3 मिसाइल छोड़े 4 दिन में। और एक मिसाइल का डिस्टेंस था 1500 रफली। ये आइडिया मैंने लगाया कि साला ये जब साइक्लोन पैदा हुआ अंडमान से, उसका डिस्टेंस उड़ीसा से कितना है? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम। एंड जैसे अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन, ये वो अपने बैठे बैठे फ्लूक में राइट है रॉन्ग है, बट 99% राइट है। और इसीलिए जहाँ डेवलप हुआ वहीं नुकसान होना चाहिए, तो वहीं जाना चाहिए। जनरली किसी को, एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ बिना उसके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना, यहाँ पर अपने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बिकॉज तुमने जितना भी टेस्ट किया, अगर बारिश नहीं आती तो पूरा पोल्यूशन आकाश में फैल जाता
और ज़्यादा टेंशन होता। बारिश बेचारी उसको लेकर के पानी में ज़मीन में डाल रही है। देखना अभी बारिश के जो है मिट्टी कितनी काली है। जब रेडियो एक्टिव कुछ होता है ना बहुत काली होती है। ये सब बारिश की एकदम काला होता है और स्लिपरी होता है। और कभी कभी रॉकेट वाला जो होता है ना लॉन्च, तब देखना पानी गिरते ही ना जल्दी सूख जाता। जैसे नींबू डालते हैं ना रे, वैसे जल्दी सूखता पानी। कितना कितना है, अपने बैठे बैठे अपने रॉन्ग भी होंगे, लेकिन लेट देम प्रूव यार रॉन्ग ना। एक होमवर्क तो मिल गया ना उनको कि भाई ऐसे भी पागल हो, एटलीस्ट तो वो तो बोलो, कुछ तो करो। कौन टेस्टिंग के लिए सब अपना कंट्री पीछे हो रहा है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू प्रूव आवर पॉइंट इज, पहले यूएस में सब हरिकेन सब आते थे पहले, अब लास्ट एक साल से कोई पड़ा गया? क्यों? कि वो अपने इधर टेस्टिंग यहाँ करा रहे हैं, वो क्यों मरना? दे अंडरस्टूड मे बी दैट। सी एवरी टाइम बोलते हैं हरिकेन आया, वो आया, एकदम अब सब कहाँ गया? दे अंडरस्टूड, दे कॉट अस। अब मैं साथ में ज्वाइन कर रहे हैं भाई, हो सकता है। और वहाँ नहीं आ रहा है तो कर तो वही रहना सब जगह। वो देखते हैं कि उनको रिएक्शन दूसरी जगह होने दो। अब दे हैव टू फाइंड आउट, दिस होमवर्क फॉर देम। एंड किसी को करना नहीं ना रहा, क्योंकि डिफरेंट है। उसने छोड़ दिया जा हो गया। हाँ, अब इन्होंने देखा साइक्लोन यहाँ से आया, उसने थोड़ी ढूंढना क्यों कहाँ से आया, बस साइक्लोन अंडमान से आया, बस इसका काम है। उसका काम है फेंकना, उसका इसका कोई कनेक्शन नहीं। खत्म। लाइक बड़ी हुई कंपनी में ना CST परचेज एक आदमी के पास होता है और सेल्स दूसरे के पास, दोनों को मालूम नहीं पड़ता ना वैसे। स्टोर वाले को मालूम नहीं पड़ता है कहाँ जा रहा है, और इसको नहीं मालूम पड़ता कहाँ से आ रहा है। बस वैसे ही है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किसको नहीं मालूम हो रहा है। कितना वैलिड पॉइंट है कि वहाँ पर हरिकेन सब आ नहीं रहे। यूएस में भी सडनली कैसे स्टॉप हो गया? नेचर बहुत उनसे लव कर लिया गया, कैसे है? बहुत भारी सोचने का पॉइंट है भाई। जय प्रगति। अंकल जी, आप अभी जो ट्रिगर होना, पॉप होना, आइडिया वगैरह बोल रहे थे, तो ये शुरू में फल फ्रूट खा रहे थे, तो वो वहाँ से ये ट्रिगर कहाँ से हुआ उनको आइडिया कि मांस खाना? रॉन्ग साइड में गए कैसे? नहीं, मैंने बोला ना, उन्होंने ऐसा नहीं हुआ ना। उन्होंने औजार बनाया अपनी सेफ्टी के लिए। जब उनको लगा शेर वेर आ रहे हैं ना, शेर खा जाएगा करेगा, थोड़ा डर लगा, तो पत्थर के औजार बनाए तो यूज किए। तो उसमें क्या हो गया, बाई डिफॉल्ट मरना है। पहले सेफ्टी के लिए किए, फिर स्पोर्ट्स के लिए किए, फिर देखा ऐसे ही पड़ा है, वाई नॉट इट रही, वहाँ से स्टार्ट हो। वैसे उन्होंने बांस खाने का स्टार्ट नहीं किया, ऐसे स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, समझे ना? ऐसा ट्रिगर हुआ। ये इसको ट्रिगर नहीं बोलते, आइडिया नहीं आया, स्लोली गॉट करप्टेड। इट्स नॉट ट्रिगर, ट्रिगर इज आइडिया। दे डिड नॉट हैव द आइडिया ऑफ मांस, दे जस्ट भैया चलते चलते नीचे 4 आना कॉइन मिल गया, उठा लिया मैंने वैसे। बट ये कि तेरा दिमाग जरूर ट्रिगर हो गया, अच्छा एकदम। कितने बच्चे यार, मजा आ गया मेरे। हमारे दीपन माम क्या बोलता है, हमारी हॉलीडे है ना अभी, ट्रिम हो रही है, हॉलीडे को ट्रिम कर रहे हैं। क्या क्या बच्चे सीखते हैं, ट्रिगर, ट्रिम, पापा। बच्चों से कितना सीखने को मिलता है अपने को मालूम। वंडरफुल वर्ड्स अभी। Uncle, that time there was no money involved. Then how the corruption came, uncle? नहीं, मनी इन्वॉल्व नहीं था, करप्शन आया नहीं है। डिफॉल्ट जो हुआ ना, उनको करप्शन उन्होंने किया ही नहीं रहे। चलते चलते रास्ता बस दिख गया, चला गया, करप्शन आया। बोले तो चलते चलते आया, उनके दिमाग में करप्शन नहीं था। दे थॉट इज अ वे ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक दैट दे डिड इट। इसको देखकर सिविलाइज बाद में हुए। करप्शन कब मालूम पड़ा? जब वेजिटेरियन फैला तब लगा कि करप्शन है। उस तारीख में करप्शन कहाँ था? उस तरह से चल रहा है वेजिटेरियन में। जब मैं लगा कि भाई मेडिकल रॉन्ग है, अभी अपने बोल रहे ना मेडिकल रॉन्ग है, तब लगता है डॉक्टर करप्शन है। पहले जब तक जीरो थेरेपी पैदा नहीं होता, जब तक डॉक्टर कहाँ करप्शन था, राइट तक वैसे है। सूप एकदम ऐसे
पहले अपने लिए भी डॉक्टर रहता ना यार। जगदीश नहीं, यस, वो अब हर तरह वही है। अगर समुद्र में टच किया अंदर न्यूक्लियर, एक अलग तरह की बारिश। रॉकेट गया, उसमें देखना बादल लाल कलर रहेगा, और ये किया ना तो ऐसे लगेगा कि बकेट डाला है। हाँ, और वो भी, और मिसाइल से गया तो अभी क्या होता है देख, 5 मिनट 10 मिनट फिर रुक जाती, फिर 5 मिनट 10 मिनट रुक जाती। वो क्यों होता है कि बादल पीसेस में हो जाते हैं। एक पत्थर डाला पानी में, कितने निकलते अलग अलग, तो इतने अलग अलग वेव्स में अलग अलग बादल आ जाते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अलग अलग बादल आते हैं ना, तो एक एक बादल आता है हवा से, दूसरा आता है ऐसा। और अभी जो गया मिसाइल से, अब क्या हो रहा मालूम है, बादल ही बिखर रहे हैं। पहले में क्या होता, बादल मिल जाते तो हेवी आ जाती थी। अभी पहले रेन, ये जो 3 दिन 4 दिन के पहले है, वो क्या करते हैं, बादल धीरे धीरे आकर मिल जाते हैं तो हो जाता है। और जो बादल अलग अलग निकला है वो वहाँ जा रहा है। तो अभी ये क्या है, इतनी जोर से नहीं है, इतना अलग अलग। जैसे तुमने टेस्ट किया वैसे बादल बनेंगे, वैसे ही बारिश आएंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि बकेट डाला ऊपर से, बस सडनली बकेट खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। आजकल ऐसे हो रहा है। और हेवी बादल आते हैं ना, मतलब 100% केमिकल, नहीं तो धीरे, मतलब तो मोटे नहीं होते बादल। ये बूंद बूंद मोटे होते हैं ना, तो नेचर ने एक साथ में केमिकल को नहीं चलाना है, जितना जल्दी हो सके नहीं चलाना। दिस ऑल आवर आइडिया, मे बी वी आर रॉन्ग, बट साइंटिस्ट हैव टू प्रूव वी आर रॉन्ग। सिंपल। टाइम हो गया। यस यस, देखो सबसे बड़ी ब्यूटी क्या मालूम है, इस बार कभी भी पहले बारिश आती है तो नेक्स्ट डे क्या बोलते हैं, क्या यार इतनी जोर से बारिश आई, बिजली कितनी गरजी, आवाज कितनी आई, सब पहले वही होता है। अब क्या होता है, सी सिंपल लॉजिक, ट्रूथ एंड अनट्रूथ। कितना अभी कोई बात कर रहा है कि बिजली दीवारी होता है, वो कोई है ही नहीं ना रहे। और हैवी बारिश आ रही है, तहस नहस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सी, एक स्मॉल नेचर में ओरिजिनलिटी है। और इसमें देख, बिजली भी दिखने को नहीं मिलती है। कभी से एक गलती से हो गया, 1 महीने से बारिश आई है, शायद 5 बार से ऊपर बिजली सुना भी नहीं होगा। कितना बड़ा, और कोई बात नहीं करता, सब बोलते हैं मानसून ये वो, कोई बोलता नहीं है कि यार कि बिजली कहाँ गई है। तो वो तो पूछ सकते हैं ना, मानसून है सब कुछ है, बिजली क्यों नहीं आ रही है। अभी कोई नया लेटेस्ट डिजाइन के बादल है या नया रेन है, डिजाइनर है, क्या है, वो तो बोल सकते हैं ना रे, कि सब न्यू डिस्कवरी ऑफ इंडिया कि भाई देयर इज नो बिजली एंड रेन, कुछ तो कर सकते हैं ना रे। क्यों मालूम नहीं क्या है, कुछ करना ही नहीं है किसी ने, अच्छा काम करना ही नहीं है, एक्सेप्ट जीरोथेरेपी पीपल। अच्छा काम सोचो, सब फायदा फायदा ही देखते हैं, पैसा फायदा पैसा फायदा। अपने नेचर में पैसा फायदा नहीं है, जीरोथेरेपी के नेचर में पैसा फायदा नहीं है। अगर है तो जीरोथेरेपी नहीं है, सिंपल। और कुछ सनलाइट में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। सनलाइट इज एनर्जी, नेगेटिव नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तुमको अगर, हाँ, तो फिर चांद, इसके लिए वापिस डाउन करने की चांद है ज़्यादा, अगर तुम ठंडा कर देता बेचारा। कितना फर्स्ट क्लास बनाया है, अपने सोच भी नहीं सकते रहे। जितना सोचो उतना नया नया, आज तो इतने नए पॉइंट आए सोचने से, ऐसी बात करते करते वंडरफुल पॉइंट है। यू हैव टू रिपीटेडली सी दिस। आज का जो सेशन है, इसलिए आजकल तारीख भी ला दिया। हाँ, पहले वो नहीं था, बोल सकते भाई 30 तारीख का, कितना बराबर है, टोटल कितना है, 4 है। 4 का तो अपना बनता ही नहीं कभी, मॉर्निंग कैसा है, 4 का अपना बनता ही नहीं कभी। मतलब जनरली 4 का तो कुछ अपना बनता ही नहीं है। ठीक है, अब 4 में भी एनर्जी आ गए होंगे, क्या मालूम, कुछ ना कुछ तो मीनिंग रहेगा 4 का भी। मतलब देखेंगे कल परसों, निमराज जी पढ़ कर आएंगे नेक्स्ट। अभी फर्स्ट संडे है अपना जीरोधर मित्र का मैसेज आ जाएगा। जीरोधर मित्र फर्स्ट संडे है,
और 20 दिसंबर को भी है, क्योंकि नवंबर जो नहीं था ना, उसके बदले 20 दिसंबर संडे को भी है। 20 दिसंबर और 6 दिसंबर। होप 6 दिसंबर को बारिश नहीं आना चाहिए। जनरली अपना होता ही नहीं ऐसा, क्योंकि वो 3 दिन 4 दिन रह गए, उसके बाद में फ्रेश आने के लिए टाइम लगा। उसके बीच में कोई मिसाइल छोड़ जाए तो नहीं मालूम, रॉकेट छोड़, अभी उसका टाइम हो गया ना ऊपर जाने का, लॉन्च नहीं होना कोई। लेकिन एक बात है, सब मॉडलिंग नवंबर में क्यों करते हैं? आपने लिखा हुआ है ना 2011 में, देखा तुमने कभी मैसेज आया वो 2011 का मैसेज है? देखा तुमने? देखा ही नहीं। देखो तुम खाली पढ़ते हो, डेट नहीं देखते हो। अब से डेट देखा करो। 2011 में अपने बोला भाई, इतने जन नहीं देखा, तूने भी नहीं देखा। 2011 उसका भी आया ना, अपने व्हाट्सएप में आया होगा ना। हाँ, इतने लोगों किसी को नहीं मालूम, बोल दूसरे कैसे देखेंगे? 2011 में फेसबुक का उठा करके डाला है, उस दिन भी यही बारिश ऐसा, अभी भी ऐसा। तो बराबर देखो, देखा नहीं? 2011 का क्लिपिंग ही पूरा डाला हुआ है। वापस पढ़ना या वापस भेजाना पड़ेगा। एटलीस्ट डेट देखो, अब से पॉइंट नहीं, डेट भी देखो। और जनगण मन पर